नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम आज आपको समझाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया कोड। इस कोड को हमको करने में बहुत समय लगा, लेकिन हम इसको कोड को आप इस तरीके से समझाएंगे कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो फर्स्टली आई विल जस्ट गोइंग ऑन टू द this will be the Google Colab Python framework. And firstly, I will just without wasted the time, I will just start my code. So firstly, you have to be what you do. So firstly, you have to be at one library. Import pandas as a PG. Import panda as a PD means whatever in your table that you have to be just recognize all the data from your table data, like a Excel sheet, like a Google sheet, right? So you have to be just take it, import panda as a PD, pandas as a PD. Okay. सो PANDAS एज अ PD। देखिए P और ये D इसका शॉर्ट फॉर्म हमने ले लिया। जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं भाई शॉर्ट फॉर्म में कि भाई हम कुछ भी नाम बोल देते हैं, निक नेम, राइट। उसी तरीके से हमने इस लाइब्रेरी का नाम दे दिया एज अ PD। देन आफ्टर व्हाट यू विल डू, the you have to be just run this code. I will just run this. Wow, this will be run. That will be great. Then after I will just take the one data that will be the Delhi का ये data है, right? So you have to just take it DF. What is a DF? Firstly, I will just call you this kind of things, but this will not showing any data, right? So I will just take one data. How will I will just take a data? So wait for a moment. I will just edit it. Okay. And what I will do, I will just I will just what I will do, what I will do, I will just going onto that section and I will just edit the daily data, open it and add on it. Now you can see it. You have to be visible my screen, yes or no? If you will not visible my screen, that will be complicated. Maybe now you are visible to my screen. Ha ha ha. So this will be the data of delhi.csv and I will just call it. And firstly, what you will do, you have to be just take the one index that I will just call my columns. Before I will just call, you have to be just read all the data from my my CSV file that will be uploaded on the Excel sheet, right? So I will just take from that table data. I will just call you the DF. The DF is just the data frame. The data frame is what? Data frame is just a variable. I will just declare the one variable that will be the PD dot read. PD means pandas. Ha ha ha. And the read CSV means just that will be very clear. Read CSV just the extension. That will be just the extension. What is this? You have to be just see. This will be the extension. Where is its extension? This will be not the extension. You have to be just take a one. I will just call you. It's not showing like that. But I will just explain you. That will be just simple. Read CSV means just they will just read the CSV file. And I will just edit the one file delhi.csv. After then, I will just run on it. I will just run it. That will be call and the second code will be run. df is equals to pd.readcsv delhi.csv. After that, I will just call it df.columns. Means the rows and columns are arranged very perfectly. Unbelievable. But after that, you have to be add something. Uh, if you just know about it, what are the columns on your data? Columns headings are there, simple. Okay. So I will just call my columns. So I will just add it the df.index. It's correct. No, it's not correct. I will just write df.columns. Df means that will be my data framework, data frame, right? That will be just store all the data of the delhi.csv, right? So I will just store on the df and I will just call by df, right? कि भाई ये जो हमारा डेटा है इसमें से आपको क्या चीजें चाहिए, हमको कॉलम चाहिए. I will just write df.columns and they will just provide you the great thing.
That will be just unbelievable things. You have to be just seen. This will be very unbelievable and very impressive. You have to be just seen. This will be like you. They will show like that. You have to be just see the names of all the columns in the DF. They are inside an index object. Panda uses the index to store the columns and the rows labels, right? D table object. D type is equals to object means the labels are stored as a text and strings, right? Means they are inside an index object. हमारा जो इंडेक्स ऑब्जेक्ट है उस इंडेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पांडा को यूज में ले रहे हैं और पांडा को यूजर्स में लेके हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडेक्स टू स्टोर, हम इंडेक्स की मदद से स्टोर करा रहे हैं कॉलम और रोज को. मींस 0 1 2 3 हम रोज और कॉलम्स को स्टोर करा रहे हैं. डी टाइप मींस ये है कि जो आपका जो भी दिस लेबल्स, जो भी लेबल्स में है, राइट, उनको हम एज जो लेबल्स में है उनको हम एज टेक्स्ट और स्ट्रिंग में स्टोर करा रहे हैं. हा 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 हा. And so in the simple, this is a pandas telling you here the list of the columns. Here's the list of the columns and the headers in your tables, right? Second, I will just going on to the example. For example, data type is one column, next MC is another column, and so on. All the way to last will be the column as a wide speed KMPH. So if you use df.columns, you would have gotten exactly this list, right? So if you ask, that will be the what is the D type, what is the D type is what? D type is nothing. D type is just means this labels are stored as text and strings, right? Okay, clear everyone? Okay, so this should be just showing database जो data type हमारा जो है that will be just store the text and string. After then when I will just click on the next code, so I will just run on it and that will be run. So that will be the great thing. After then I will just going on to the next code, and the next code will be the great. df is equals to df dot drop total snow cm. What is this? Access is equals to 1 means when I will just call it means df is just my data frame and I will just call df dot drop. df dot drops means I will just remove the one thing. What the one thing? I will just going on to that section and I will just search on it. What is this? So this will be just showing df. This is your data frame, like a big table in your Excel with the rows and columns. Drop is this the command to remove something from that table. Total snow cm. This is the name of the column you want to remove. Access is equals to 1. This tells Python you are removing a column, not a row. Not a row, right? Access 0 is equals to means this will be remove a row. Or I will just mention access equals to 1 means I will just remove a column. That will be clearly in your mind. So in the plain English, take the table, call the df, remove the columns, name, total is no cm, right? And you have to be just give me the new table without it. Simple. So it's like erasing the one column from your Excel sheet. Simple. Ha ha ha. After then, when it's going on, and I will just take the one benefit, I will just call again the df dot columns means they will just provide me the again column list of the header of my columns. That will be the showing the headers of my columns. That will be but in this my code you don't see the one column. What the code? That will be the code of what the code? That the code will be the that will be the one column will be remove on it, and you don't see on that the df dot columns. That will be the total snow underscore cm. That will be not in my code. Simple, right? So I will just run this code firstly. This will be remove my one column total snow cm. After then I will just call on a df dot column. That will be not showing. That will be the magic. That will be the great thing. Yes, clap, very good, very good. Yes, good. After then the next will be the great code. You have to be just seen on it. That will be the df dot head. What is this?
df dot head means what? Df dot head means, I will just explain you. I will just written on it and I will just search on it. Df dot head means that will be the one easiest pandas commands. Df means your data frame, the big table, right? Head means show me the first few rows from the top. Some few rows from the top. It's like peeking at the top part of an Excel sheet to see what your data looks like without scrolling. Example, if your data frame 1000 rows, the df.head will just give you the rows 0 to 4. So you can quickly check the column names and some sample data. Wow, that will be the great, right? After then, I will just run this code and you just see how many rows on this code. This will be the 5 rows and the 24 columns. Wow, ये तो कमाल की बात है. 5 rows, 24 columns. Wow, what is this magic? 5 rows and 24 columns. That will be the very great column. I will just impress on it. After then, I will just going to the next line code. That will be what? That will be, I will just copy that code. I will just copy this code. Control C. And I will just run on it. And you have to be just seeing what the things will be happening. Is simply printing the size of your data frame. df.shape means what is this? df.shape gives a tuple, rows and columns. First number is equals to how many rows? Second number, how many columns? अरे मैं तो रुक गया. आप क्यों रुक रहे हो? अरे फर्स्ट नंबर का मतलब यहाँ पर ये क्या है? हाउ मेनी रोज, कितनी रोज तुम्हें लेनी है? अरे सेकंड रोज का मतलब, सेकंड नंबर का मतलब यहाँ पर ये है कि हाउ मेनी कॉलम्स. अरे कितने कॉलम्स है? ये क्या हमको पता है क्या? अरे कितने रोज है हमको क्या पता है? हमको नहीं पता है. हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स. तो वी हैव टू बी जस्ट यूजिंग द df डॉट शेप. अरे एफ का मतलब यहाँ पर ये है कि दिस इज अ एफ स्ट्रिंग व्हिच लेट्स यू पुट वेरिएबल इनसाइड द टेक्स्ट. अरे एफ का मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? अरे एफ का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि दिस इज द एफ स्ट्रिंग. ये एक हमारी जो स्ट्रिंग है ये एफ स्ट्रिंग है. एफ स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर तुम कोई भी वेरिएबल को डाल सकते हो. अरे कोई भी वेरिएबल को इनसाइड द टेक्स्ट. आप इसमें कोई भी वेरिएबल्स को डाल सकते हो इनसाइड द टेक्स्ट. इस टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो. पुट द वेरिएबल्स इनसाइड द टेक्स्ट. अरे इस टेक्स्ट के अंदर अपना कोई भी वेरिएबल स्टोर करा सकते हो. तो मैं यहाँ पे एफ को ले रहा हूँ. एफ का मतलब नहीं है था, ये समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलने लग जाओगे. स्लैश एन मीन्स क्या है? अ न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग. ये तो पूरी दुनिया को पता है. अरे ये तो पूरी दुनिया को क्या, ये तो मेरे सबको पता है, सबको पता है. So if your data frame had a 500 rows and 24 columns, it would be print. Shape of the data frame is a 524. अरे 524 नहीं लिखेगा क्या? अरे क्या तुम इतना यार सोच रहे हो? अरे it is saying tell me how many rows and columns in your table. If you want, I will showing the quick trick to get just rows and just a column. df dot shape from df. अरे यस करो ना, अरे यस कर दो ना. अरे यस तो कर दिया ना. ऑलराइट, df dot shape ये देख लो. अरे करके बता दिया इसने तुमको. अरे df डॉट शेप 0 कब दे रहा है? 0. अरे df डॉट शेप दे रहा है तो इसका मतलब 1 दे रहा है. अरे df डॉट ये तुम देख सकते हो कि ये तुम्हें क्या दे रहा है. अरे इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें फिर क्या ही समझ में आएगा. अरे ये देख लो, इसका मतलब ये साफ बता रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास में df डॉट शेप जब मैंने इसको यूज में लिया तो ये 524 तुम्हें बता रहा है. अरे प्रिंट भी करा रहा है कि भाई तुम जो है समझ जाओ मेरी बात कि भाई रोज जो है वो तुम्हारी 500 है. अरे कॉलम जो है वो तुम्हारे 24 है. अरे एफ मीन्स नहीं समझ में आ रहा है. अरे कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं. अरे डोंट वरी यार. अरे एफ का मतलब यहाँ पे एफ स्ट्रिंग है, शॉर्ट फॉर फॉर्मेटिंग द स्ट्रिंग, लिटरली इन द पाइथन. अरे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है, इट इज स्पेशल वे ऑफ द वेज writing the strings so you can directly insert the variables and calculation inside the curly braces. Without having to use a plus or comma for the concatenation. Without having to use, आपको प्लस और कॉमा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है.
अरे इसका मतलब सिर्फ ये इतना बता रहा है कि भाई इसमें तुम जो है शेप ऑफ डेटा फ्रेम इज, ये हमने यहाँ पर लिया है, और उसके बाद में हम इसमें कुछ नहीं करा रहे, हम एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जो तुम्हें आपकी वैल्यू को स्टोर कराएगा। जैसे कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू राज, और अगर मैंने लिख दिया हेलो प्लस नेम इज इक्वल टू वेलकम, तो आ गया ना हेलो राज वेलकम। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया है ना, उसी को तो तुमने कॉल किया, नेम राज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ, मैंने फिर से नेम लिखा, और इस बार मैंने यहाँ पे कोई भी डबल कोट्स नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे कोई भी प्लस नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अरे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई भी डबल कोट्स नहीं लगाए, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया हेलो। अरे हेलो लिख दिया मैंने सिर्फ, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया नेम। अरे नेम, सिर्फ नेम लिखा है, नेम, और कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने प्लस प्लस कुछ नहीं लिखा, और मैंने आगे लिख दिया वेलकम, और ये मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद में मेरा आउटपुट जो है वो सेम आएगा। इसका मतलब यही हुआ है कि क्लियरली एंड इजियर टू रीड faster than the plus or the strings can insert the variables expression and run calculation directly। अरे अब तुम्हें समझ में आया। अरे ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 3, अगर मैं लिख देता हूँ इसमें ये प्रिंट एफ इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो ये क्या करेगा तुम्हारा? अरे ये तुम्हें दे देगा कि भाई सम इज इक्वल्स टू वेट, कि भाई जो एफ में है वो प्रिंट करा दो। एफ में क्या है, एफ में ये है कि सम इज, और जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो तुम्हारा प्रिंट करा देगा। अरे इन योर केस शेप, अगर ये है तुम्हारे पास, विल डायरेक्टली इंसर्ट द df डॉट शेप। अरे df डॉट शेप को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ लाइक 524, तो 524 इनटू योर टेक्स्ट। अरे ये इनटू योर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 524, और तुम्हें ये जो है वो तुम्हें शो हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आया? अरे नहीं आया क्या अभी भी? अरे आया ना? अरे तो यस तो बोलो। यस। अरे ये कौन आ गया? अरे यार ऐसे कैसे बोलते? इसको मैं करूंगा रन, रन क्यों नहीं करूं? अरे शेप ऑफ द डेटा फ्रेम इज 96432 एंड 24। मेरी अगर रोज अगर पूछते हैं तो मुझे सीधा बोलना है 96432, और अगर रोज पूछे तो रोज तुम्हें बोलनी है 24 रोज है। अगर तुम नहीं बोलते हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बुरी बात होगी। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें समझाना है तो मेरे स्टाइल से पढ़ाना सीख लो, वरना मैं भी यही बोलूंगा नहीं समझ आ रहा है। एक काम करो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अरे तुम पढ़ा के देखो, तुम्हें लगता है कि ये बहुत इजी है, तो तुम पढ़ा के देखो। नहीं तुम पढ़ाओ। इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान चीज है, इसको तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये वाला जो कोड है ये तुम पूरा समझाओगे, इसको मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैं नहीं समझा रहा हूँ, तुम समझाओ इसको, चलो जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? अगर तू जाएगा तो मैं किसको समझाऊंगा? अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम जो है समझाओ, अगर इन सबको अच्छा लगेगा तो फिर मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे कह दिया कि मैं सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आ जा, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट df डॉट इन्फो, इसका मतलब क्या है? तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसको जो है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी, और कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंटर। देख लीजिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ गया है स्टेप बाय स्टेप df डॉट इन्फो। इसका मतलब क्या है? shows the summary of your data frame, shows the summary of your data frame, पूरी समरी जो है वो दे देगा लाके। हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी है, 96432 दे देगा आपको। कॉलम नेम्स आपके क्या क्या है, बहुत सारे नेम्स आपने रखे हुए हैं इसमें, मुझे सिर्फ एक पता है, लेकिन मैं उसका नाम लूंगा नहीं क्योंकि मुझे वो भी सही से याद नहीं है। हाउ मैनी नो, हाउ मैनी नन मिसिंग, नॉन नन वैल्यूज ईच कॉलम हैज, कितनी तुम्हारी इसमें मिसिंग है वो भी यह तुम्हें बता देगा। उसके बाद में वहाँ पे लिखा हुआ आएगा नॉन नैन, इसका मतलब जो है वो तुम्हारी जो वैल्यू है वो वहाँ पे मिसिंग है। द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन 64 रो 64
ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट समझ में आ रहा है हाउ मच मेमोरी द डेटा फ्रेम यूजेस कितनी तुम्हारी डेटा फ्रेम जो है वह मेमोरी को यूज में ले रहा है एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल बहुत इजी है अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है क्लासेस पांडास कार फ्रेम रेंज इंडेक्स 500 एंट्री जो है 0 to 49 डेटा कॉलम्स सबकी हिस्ट्री आ गई ना मैंने बोला था ना कि ये रोज बता देगा तुम्हें ये रोज इसने बता दी है इसने बोला था ना मैंने ये इंडेक्स की रेंज बता देगा इंडेक्स की रेंज भी बता दी है डेटा कॉलम्स कितने हैं वो भी इसने शो कर दिए उसके बाद में ये कॉलम भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडेक्स है ये कॉलम भी है यहाँ पे यह भी लिखा हुआ आ रहा है कि नॉन नल आपका तुम्हारा कौन सा है अगर नॉन नल लिखा हुआ है एस का मतलब यह है कि वो जो तुम्हारी वैल्यू है वहाँ पे मिसिंग है डेटा टाइप में लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता डेटा टाइप लिखा हुआ है इन 64 फ्लोट जो है वो 64 दिए हुए है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है अभी मैं बता दूंगा मेमोरी यूसेज 93+9+ के भी दिया हुआ है प्रिंट कर रहा है प्रिंट का मतलब प्रिंट वॉट एवर df.info रिटर्न्स ट्रू df info ऑलरेडी प्रिंट बाय इटसेल्फ स्लैश n का मतलब यहाँ पे ये है ऐड अ ब्लैंक लाइन आफ्टर द पुटिंग फॉर स्पेसिंग इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि df.info जब तुम करते हो ऑलरेडी प्रिंट इन्फॉर्मेशन टू द स्क्रीन एंड रिटर्न द नन so when you do print df.none you see the data frame info and then none printed at the end so return the none then slash n is just adding extra space so if you just info without none अगर तुमने रन किया तो you can run print अगर तुम्हें स्लैश n नहीं चाहिए तो प्रिंट भी करना पड़ेगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है वो देख लो I explain very much but example देख लो ये भी है तो कहाँ गया अब देख ले मैंने इनको समझा दिया है अरे ऑल राइट print pandas object means text and string data or sometimes mixed types if a column has a word sentence or anything that's not purely the numbers panda stores it as an object name Raja age 25 Priya Aman सबका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है if you load this table into the pandas and you write df is equals to pd date data frame data print so that will be the if you just add the name and the name is just Raj Priya Aman and the age is just so that will be the what is the name is what because name में because this will be the text values are there so I will just assign the object these are the numbers I will assign the int64 so data type object this column stores the text string or mixed of data types for example hello 20250811 it is stored as a text and yeah is no this all are the object data type are you clear my point yes or no yes or no yes okay तो अब मैं आता हूँ इस कोड के अंदर और मैं इसको भी रन करके बताता हूँ तुम्हें यह कैसे रन होगा तो जब मैंने इसको रन किया तो मुझे यहाँ पे रेंज इंडेक्स जो है वो मिल गया है 96432 मीन्स ये मेरी रोज बता रहा है हाँ रेंज बता रहा है 0 to 96431 डेटा कॉलम्स total 24 columns total 24 columns this will be hash will be showing all the my index value will be starting from the 0 column name all are showing like that the column names are you have to be just read on it what is the column name
This will be the column names are there. You have to just know about it. After then the non-null. This will be showing that will be rows. Count will be showing this will be the non-null value. And the data type. D type is just showing the what are the data type. Zero index data time की बात मैं बता रहा हूँ आपको. That will be the ये सब के सेम रहेगा non-null और count. लेकिन जो डेट और टाइम का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट रहेगा. उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम मैक्स टाइम सी है, मीन टाइम सी है, मिनिमम टेम्परेचर सी और मैक्स टाइम सी जो है जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है तुम्हारा ऐप का वेदर का या वो मिनिमम होता है तो N64 हम बताते हैं क्योंकि वो वहाँ पे नंबर्स में दिखेगा, इसलिए उसका डेटा भी N64 रहेगा. दोनों का डेटा N64 ही रहेगा. सन आवर जो है वो तुम्हें यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट में वैल्यू मिलेगी कि सन का आवर कितना है, सन का आवर कितना चल रहा है, सन का टाइम कैसे चल रहा है. That will be showing the float 64 UV index. UV index और UV index dot one यहाँ पे बता रहा है. That will be the data type of Int64. That will be the Int64. Moon illumination क्या है ये? इसका मतलब यही है N64 और Int64 तीनों वैल्यू नंबर में मिलने वाली है. उसके बाद में मून राइज, मून सेट, मून सनराइज, सनसेट सब के सब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आएंगे क्योंकि इसके अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकता. उसके बाद में एक और आएगा ड्यू पॉइंट सी, ये तुम्हें Int64 में मिलेगा. उसके बाद में फील्स लाइक अ सी, तुम्हें ऐसा लगेगा फील्स लाइक अ सी, N64 रहेगा वो भी. हीट इंडेक्स सी N64, वाइन चिल सी N64, वाइन गश kmph, क्लाउड कवर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर mm, प्रेशर की बात नहीं करता हूँ लेकिन ह्यूमिडिटी का क्लाउड कवर, वाइन गश kmph, वाइन चिल सी, हीट इंडेक्स सी, फील्स लाइक सी, ड्यू पॉइंट सी सब की सब N64 रहेगी. प्रेशर m जो है वो फ्लोट 64 रहेगा. अरे फ्लोट 64 रहेगा, समझ में आ रहा है. ये तुम्हारा फ्लोट 64 रहेगा. अभी तक सन आवर और एक प्रेशर mm, सन आवर और प्रेशर mm दो फ्लोट 64 रहेंगे. बाकी सब की सब आधे से ज्यादा प्रेशर टाइम सी, विजिबिलिटी, विंड dr डिग्री, विंड स्पीड kmph सब के सब N64 ही रहेंगे क्योंकि ये सब की सब तुम्हें एक नंबर वाली वैल्यू देंगे, होल वैल्यू देंगे. और ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, ऑब्जेक्ट में तुम एक चीज ध्यान रखना कि टोटल तुम्हारे ऑब्जेक्ट 5 है. एक है डेट टाइम, बाकी मून राइज, मून सेट, सनराइज, सनसेट, ये सब की सब ऑब्जेक्ट है. बाकी और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. टोटल 24 कॉलम यहाँ पे हो चुके हैं. कैसे हो गए हैं वो तुम्हें काउंटिंग करनी तो आती होगी. डेटा टाइप से है, एंड में समरी भी दे रहा है. फ्लोट 64 2 है, N64 17 है, 19 होता है. ये ऑब्जेक्ट 5 है तो टोटल 24 होता है. चॉइस कॉलम इसमें है, चॉइस कॉलम के चॉइस डेटा टाइप हमने बता दिया है. मेमोरी यूसेज हो रही है 17.7 प्लस MB इसमें हो रही है. बाकी चीज हमारी चीज ज़्यादा बोलना नहीं, सादा इतना ही बहुत है. अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में भी तुम्हें समझाऊं, ये कॉलम के नाम जो है वो तुम्हें नहीं पता है तो वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा. इजी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें इजी एग्जाम्पल मिल जाए. इजी टू अंडरस्टैंड लिख रहा हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि अच्छे से तुम इसे देख सकते हो. अब देख लो. Imagine you are running the weather station in your town. मान लो कि तुम एक वेदर स्टेशन के तुम वहाँ पे बहुत बड़े ओनर हो.
और तुम ही वो सब कुछ कंट्रोल करते हो वेदर स्टेशन को। एवरी डे योर कंप्यूटर रिकॉर्ड द डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द वेदर। ईच कॉलम इन योर डेटा फ्रेम इज लाइक वन टाइप ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन यू आर सेविंग। समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं अच्छे से स्टोरी नहीं बता पाऊंगा, और कोई है जो मुझे बता सकता है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको मेरी बात समझ में आ गई है, लेकिन मुझे भी अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आगे कोई और कंटिन्यू कर सकता है क्या, प्लीज? सुन लो बेटा, सुन लो। इमेजिन यू आर running a weather station in your town. सुन लो। एवरी डे योर कंप्यूटर, नहीं हो रहा मुझसे, हो रहा। अरे यार क्या यार? इमेजिन यू आर रनिंग अ वेदर स्टेशन इन योर टाउन। एवरी डे योर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। क्या बात है यार, योर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द वेदर। यानी कि वेदर के डिटेल्स कर रहा है डेटा को। यार उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? एवरी डे योर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स द डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द वेदर, क्योंकि वेदर तो चेंज होता है हाँ, अच्छा अच्छा। तो यार ईच कॉलम इन योर डेटा फ्रेम, ईच कॉलम इन योर डेटा फ्रेम इज लाइक वन टाइप ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन यू आर सेविंग। यानी कि ये होता है कि यार हर कॉलम में एक डेटा फ्रेम जो है इज लाइक अ वन टाइप ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन। सबके अंदर एक कोई ना कोई वेदर इंफॉर्मेशन है यार, सबके अंदर है। अरे यार वाओ, अरे यार कमाल हो गया, कमाल हो गया। सबसे पहले डेटा कॉलम की बात करता हूँ, डेट टाइम की अरे ये तो मुझे क्या, पूरी दुनिया को पता है अरे बच्चों को भी पता है सबको पता है, सबको पता है। द डेट एंड टाइम व्हेन यू रिकॉर्ड द वेदर। अरे ये क्या है? अरे ये तो डेट और टाइम को ले रहा है यार। डेट और टाइम क्या है? व्हेन यू रिकॉर्डेड द वेदर। जब भी कोई रिकॉर्ड कर रही हो वेदर को, उसका वो डेट और टाइम ले रहा है यार। जैसे कि आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त 2025, 10 बजी है। क्या बात है? अरे यार कोई भी डेटा, कुछ भी डेटा, लेकिन डेट और टाइम जो है वो ले रहा है। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने लिया है। उसके बाद में मैक्सिमम टेम्प सी जो है ये क्या बताएगा? अरे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे अरे इन द सेल्सियस। अरे मान लो कि आज यार, आज का अगर मैं डे कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर अभी के तक का हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। अभी तक का जो भी है सेल्सियस में है यार। अरे यार सेल्सियस है, सेल्सियस अगर कोई पूछ सकता है तुम्हें सेल्सियस की स्पेलिंग क्या होती है बोल देना CELSIUS अरे यार थैंक यू यार। तो एग्जाम्पल हो गया 35 डिग्री। और अगर मिनिमम टेम्परेचर लिया तो द लोएस्ट टेम्परेचर दैट डे इन द सेल्सियस 22 डिग्री सी अरे इसमें तो कुछ नहीं था। क्या यार, इतना आसान नहीं समझ पाए, समझा नहीं पाए यार, कोई भी नहीं समझा पाए। समझ में आ रहा है ना? मुझे पता है अरे मुझसे अच्छा कौन समझाएगा यार उसके बाद में सन ओवर। अब सन ओवर क्या है? अरे हाउ मेनी आवर्स ऑफ द सनशाइन यू गेट द डे। अरे यार सन आवर कितना हुआ है अरे पूरे दिन में सन आवर कितना हुआ है यार? अगर ये नहीं पता लगा सकते हो तो फिर क्या पता लगा सकते हो? अरे वेदर स्टेशन लेके बैठे हो यार, ये तुम्हें पता होना चाहिए कितना सनशाइन हुआ है, आज कितना सूरज आया है, आज कितना सूरज मिली है, आज कितना हमको ब्राइटनेस मिली है, आज कितना सनशाइन हुआ है, कितनी सनलाइट मिली है। दैट विल बी द ग्रेट। एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ यार 7.5 आवर्स। अरे बहुत होता है यार, अरे थोड़ी बहुत लेनी भी चाहिए धूप अरे विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी मिलता है अरे यार कमाल है यार। उसके बाद में आता है यूवी इंडेक्स एंड यूवी इंडेक्स ब्रॉट वन अरे अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन लेवल। अरे अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन का लेवल जो है, अरे वो क्या है? स्केल 1 to 11 प्लस, कुछ भी, अरे कुछ भी। हमें नहीं पता यूवी रेडिएशन, लेकिन हमने एक ऐसा कुछ लगा के रखा है जो बताता है यूवी रेडिएशन कितना है अरे अगर हमें नहीं पता है और अगर किसी चीज से हमको पता चलता है तो वो हमारा यूवी इंडेक्स हुआ ना। यानी कि यूवी रेडिएशन हमको पता चल रही है, दैट विल बी द स्केल 1 to 111। अगर 1 है इसका मतलब कम है, 11 मतलब ज्यादा है, तो ये हमें एक यूवी इंडेक्स बता रहा है। अरे समझ रहे हो अरे यार नहीं समझ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है। और यूवी इंडेक्स डॉट वन मतलब ये है कि यार अगर कुछ और भी है तो हमने दो लगा के रखे, एक नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा एग्जाम्पल 5 का मतलब क्या हुआ अरे मॉडरेट है मतलब बीच में। यूवी थोड़ा रिस्क में, अरे रिस्क में ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। उसके बाद में मून इल्यूमिनेशन। अरे यार मून इल्यूमिनेशन का मतलब नहीं समझे?
अरे सन का आवर का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर सनशाइन यू गॉट दैट द डे। बट मून इल्यूमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अरे हाउ ब्राइट द मून वाज हाउ हाउ ब्राइट, अरे कितना ब्राइट था मून, कितना ब्राइट था, कितने परसेंटेज था, कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा चमक रहा था। जितना ज्यादा चमकेगा उतनी ज्यादा रोशनी, जितना कम चमकेगा उतनी कम रोशनी। अरे ऐसा होता ही नहीं यार। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे यार मून नहीं निकला, मून नहीं निकला। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं निकलता है तो भी सब कुछ ठीक है, कभी निकलता है तो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने एक मून इल्यूमिनेशन लगाया हुआ है, वो बताता है आपको कितने परसेंटेज है। मान लीजिए 75, इसका मतलब ये कि 3 क्वार्टर्स फुल मून, यानी कि 3 क्वार्टर्स जो है वो फुल मून था, फुल मून था, फुल मून फुल मून फुल मून फुल मून। यार 3 क्वार्टर्स हो गए, फुल मून था, कमाल की बात है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, मतलब फुल मून मिला है, फुल मून फुल मून। इसका मतलब ये हुआ कि यार ठंडक है, ठंडक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है यार। हम मून का क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि भाई सन जो है उसका टेम्परेचर हमने गलत तो नहीं देख लिया है, या कोई ब्राइटनेस या सनशाइन उसका वो तो हमने गलत नहीं देख लिया है। अगर हमें वो पता चलता है कि हाँ यार 7.5 वर्ड्स तो वो था, लेकिन उसके जो बाद वाले वर्ड्स हैं क्या उसमें मून था या सो नो। अरे यार ये कमाल की चीज है यार, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक चीज और लगा के देखते हैं। अरे यार कि मून राइज कब हो रहा है, मून राइज कब हो रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, मून राइज कब हो रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। यानी कि द टाइम व्हेन द मून अपीयर्ड। मून राइज का मतलब ये होता है जब वो आ रहा है, जा नहीं रहा है। आ रहा है, आ रहा है। मैं कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को। लेकिन आप ये मत समझो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, आपको अपना दिमाग लगाना है। अरे मून राइज का मतलब ये है द टाइम व्हेन द मून अपीयर्ड, जब मून आ रहा है। मान लो रात को आ रहा है, शाम को आ रहा है, 7:20 पे आ रहा है, अरे कभी भी आए तो मैं से क्या करना। लेकिन तुम खुश रहो, खुश रहो। मून सेट का मतलब क्या है, द टाइम ऑफ द मून वेंट डाउन, जब वो जा रहा है। एग्जाम्पल का मतलब क्या है, 6:10 AM, यानी कि उस टाइम चला गया है, अब नहीं है वहां पे। वो जाएगा तब कौन आएगा, सूरज आएगा, फिर सूरज जाएगा तो मून आएगा, फिर मून जाएगा सूरज आएगा, सूरज जाएगा मून आएगा, मून आएगा सूरज जाएगा, ये तो होता ही रहेगा। अरे यार बीच में मत आ यार, बीच में मत आ, बीच में मत बोल। आ, उसके बाद में उसके बाद में सनराइज। अरे सनराइज का भी एक टाइम होएगा, सनराइज का भी एक टाइम होएगा, बहुत अच्छा टाइम होएगा। ये द टाइम व्हेन द सन केम अप, जब सन आ रहा है। अरे यार द टाइम व्हेन द सन केम अप। अरे आ गया, आ गया, आने दो, आने दो। अगर आ रहा है तो आने दो, उसको रोको मत। रोकना क्यों है, रोकना नहीं है, रोकना किसी को नहीं है, रोकना कभी किसी को नहीं, किसी को नहीं। उसके बाद में सनसेट जा रहा है, द टाइम व्हेन द सन वेंट डाउन, वो जा रहा है तो कोई ना कोई आएगा, कौन आएगा, मून आएगा। एग्जाम्पल 7:45 वो जा रहा है। उसके बाद में ड्यू पॉइंट सी। अब इसका मतलब क्या है, अरे यार ये ड्यू क्या है, ये डीओ है क्या, डीओ नहीं है। टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड एंड ड्यू फॉर्म्स, जब एक ऐसा टाइम आता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 18°C मीन्स द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हाट स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन ग्रास। एक ऐसा टाइम होता है जब नमी, नमी कहते हैं नमी, उसको नमी बहुत ज्यादा हो गई है। अरे यार बहुत ज्यादा हो गई है नमी, यार बहुत ज्यादा हो गई है। तो नीचे से क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो शुरू हो जाती है फ्रॉम द ग्रास, राइट। वो क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि हवा एकदम रुक गई है। बिल्कुल नहीं है, हवा ही नहीं आ रही है, कहीं से भी नहीं आ रही है, एकदम रुक गई है। ड्यू, एकदम ड्यू हो गया है, राइट। ड्यू एकदम टेम्परेचर वहां पे सेचुरेटेड हो गई, उसका जो एयर वाला जो टेम्परेचर है एंड विल बी द सेचुरेटेड एंड ड्यू फॉर्म्स। 18 डिग्री का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भैया वाटर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रुक गई है। वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है, स्टार्ट फॉर्मिंग ऑन ग्रास, मतलब ग्रास में ऑटोमेटिकली पानी नहीं दे रहे तो भी हो रही है, नमी की वजह से, नमी की वजह से। यानी कि उसमें क्या हो रहा है, नमी आ गई है बहुत ज्यादा उसमें कि यार अरे हवा ही नहीं चल रही है। अरे हवा नहीं चल रही है तो कैसे होएगा, जो ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, उनको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तभी वो ग्रो करते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको तो। उसके बाद में फील लाइक सी। अरे फील लाइक सी का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है फील लाइक अ चैंपियन, नो 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 नो, व्हाट द टेम्परेचर फील लाइक्स टू ह्यूमंस। कि अभी जो है ह्यूमंस को कैसा लग रहा है, ह्यूमन को टेम्परेचर कैसा फील हो रहा है, लाइक वाइंड हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, उनको कैसा लग रहा है। एग्जाम्पल मान लो कि 30 डिग्री है, पर उनको लग रहा है नहीं यार, अरे 30 डिग्री होने से क्या होता है, हमको तो बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। यानी कि 30 डिग्री, 33 डिग्री बोल रहे हैं, कोई 50 डिग्री बोल रहा है, कोई 100 डिग्री बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। दैट विल बी फील्स लाइक सी, कि भाई उनका अपना कंसिडरेशन है कि भाई उनको कैसा लग रहा है, उसको भी लेना है हमको। हो सकता है कभी कभी मशीन गलत हो जाती है ना, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ मशीन सही भी है, मैं बोलता हूँ गलत भी है, मैं तो दोनों बोलता हूँ। ये लो फंस गए आप लोग ही, ठीक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, अरे कुछ नहीं बोल सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अरे मेरे बोलने से क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे हीट इंडेक्स सी का मतलब क्या है? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। लिखो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो। अरे सिमिलर टू फील्स लाइक, सिमिलर टू फील्स लाइक सेम, बट फोकस इज ऑन द हीट एंड द ह्यूमिडिटी ओनली। लेकिन इसमें सिर्फ वो हीट की बात कर रहा है, सिर्फ गर्मी की बात कर रहा है, उसमें वो ठंड की भी बात कर रहा था, उसमें वो हवा की भी बात कर रहा था, किसमें फील्स लाइक अ सी। लेकिन इसमें ही सिर्फ हीट की बात कर रहा है कि भाई अरे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, अरे यार बहुत ज्यादा हीट है, वेरी हॉट, ह्यूमिड, लाइक अ हायर एट हीट इंडेक्स, उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद में विंड, विंड चल सी, अरे व्हाट द टेम्परेचर फील लाइक व्हेन इट्स विंडी, जिसका मतलब ये है कि हवा चल रही है बहुत तेज, अरे एकदम बहुत तेज चल रही है, पेड़ पौधे इधर उधर पूरे पूरे लहर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार अरे उसका मतलब क्या है? अरे उसका मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर 5 डिग्री सी पे चला गया, बट तुम्हें ऐसा लग रहा है 0 डिग्री है। बिकॉज ऑफ वाइंड, क्योंकि हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा। अरे हवा के साथ में जब चलता है तो वो 5 डिग्री का आपको 0 डिग्री लगता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अरे यार सर्दियों में देखना तुम कभी। अरे यार लगता है कि 20 डिग्री है, लगता है 15 डिग्री है, अरे ठंड लग रही है यार, किसी को लगती नहीं, कोई पंखा चला देता है। दैट विल बी द विंड चिल सीन, कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। उसके मन में आता है वाइंड गस्ट kmph, ये डस्ट नहीं गस्ट है, राइट। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड, क्या भाई कितनी सबसे ज्यादा हवा चली हुई। अरे हवा चली, हवा चली है। हवा चल रही तो चलने दो, लेकिन जो सबसे ज्यादा एट द ऑन दैट डे सबसे ज्यादा चली, यानी कि एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर गस्ट, यानी कि उस टाइम बहुत ज्यादा हवा चली है। अरे क्लाउड कवर, क्लाउड कवर क्या हुआ है? हाउ मच ऑफ द स्काई इज कवर्ड बाय द क्लाउड्स, कि भाई क्लाउड्स ने कितना कवर किया हुआ है स्काई को, कितना किया हुआ है, कितना किया हुआ है। एग्जाम्पल 80, 80 का मतलब क्या हुआ? अरे मोस्टली क्लाउड, मोस्टली क्लाउडी। 80 का मतलब बहुत ज्यादा, 80% का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा। 0 to 100 के मतलब बता रहा हूँ। अगर मान लो बोलो 10, इसका मतलब क्या है? अरे स्काई खुला है। क्लाउडी का मतलब क्या है? बारिश आ सकती है। तो क्लाउड कवर आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में ह्यूमिडिटी आती है, ह्यूमिडिटी, अरे ह्यूमिडिटी तो पूरी दुनिया जानती है। परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, कितना मॉइस्चर है इन द एयर। अगर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें पता चलेगा, पता चलेगा। 60 मीन्स एयर इज होल्डिंग, एयर ने होल्ड करके रखा है अपने आप को। 60% ऑफ द मैक्स वाटर इट कैन होल्ड, बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करके रख दिया है। और जैसे ही छोड़ेगा तो दैट विल बी जस्ट, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगी ऑन द प्लांट्स, ऑन द ग्रास, ऑन द ह्यूमन बींग्स, लाइक दैट विल बी द पसीना इज देयर। सो दैट विल बी द ह्यूमिड नेचर, दैट विल बी द ह्यूमिडिटी, कि यार आज ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा है। अरे यार अरे यार क्या बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने यार। अरे यार आवाज चेंज हो गई, आवाज चेंज हो गई यार। अरे यार कमाल करते हो, कमाल करते हो। आगे चलते हैं। प्रिसिप एमएम, अरे प्रिसिप एमएम का मतलब नहीं पता है कि यार। अरे यार रेनफॉल, 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 रेनफॉल का अमाउंट कितना है इन द मिलीमीटर्स। अरे रेनफॉल कितनी हो सकती, कितना अमाउंट है इन द मिलीमीटर्स। एग्जाम्पल 12 millimeter mean it rain quite a bit. 12 millimeter means it rained quite a bit, right? उसके बाद में प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिलीबार्स, टेम्सी, current temperature in the Celsius at the recording time.